Assalamu alaikum student, welcome back on my channel. Okay, again today we have very important discussion related to the past paper questions, particularly focused towards the integration with limits and to find out the area under the curve or under the specified region. Okay, now I have selected some important technical questions. अच्छा देखो मैं हर तरह के questions I will try to solve here in my class, and inshallah hopefully after completion of these lecture series you will be able to understand the detailed concept of the integration and you can solve yourself all kind of the past paper questions. Okay, so now today the discussion is related to the past paper questions. Now the question is June 2002 paper 1 question number 3 part 2, that is 5 marks question. Okay, what about the question is here? This questions, according to the question, is that the diagram shows the curve y equal to 3 under root x and the line y equal to x. Find the area of shaded region. अच्छा, area of shaded region को I represent here by area of S. Clear? ये remember, just for the simplicity, just keep in your mind whenever I am going to write here area of S, it means that it represents the area of shaded region. Okay, area under the shaded region. Sorry. अब now look at this graph. यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर you have a curve. Okay, this curve की equation is what? It is given कि भाई वो ये कह रहा है कि equation of the curve is y equal to 3 under root x. ये given है. You got my point. And look at this line y equal to x. अच्छा देखो एक line pass हो रही है from the origin and it is going to intersect this curve at point P. Point P के ऊपर intersect कर रही है. Okay, and now this line y equal to x. अच्छा जब देखो y equal to x का मतलब है ना, ये remember if anybody asks you कि what will be the angle of this line, so just remember if we talk या if we mentions कि y equal to x, इसका मतलब है that line always makes an angle of 45 degree, nothing else. हमेशा 45 डिग्री एंगल बनाएगी. Why? When you have y equal to x, okay, between any two, between a quadrant x and y or between the x and y axis, if y equal to x, a line passes through the origin, so it means that it always makes an angle of 45 degree line. It is further information not related to this question, मैंने just mention किया here. Okay, look at now this point. अब हमें ये एरिया निकालना है, which area I have shaded here with blue marker. मैंने blue marker से shade किया हुआ है. तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे बात बताओ क्या होगा, ये पूरा एरिया मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट के for the area under the curve we required points along x axis, यानी हमें x coordinates चाहिए. Clear? And that x coordinates we apply as a lower limit and upper limits. तो here you have x coordinate? No, we don't have x coordinate. तो इसका मतलब है हमें भाई x coordinate ये चाहिए. ये मैं यहां मेंशन कर रहा हूं. Clear? तो ये मुझे चाहिए, ये जो कोऑर्डिनेट है ये मुझे चाहिए. इसकी वैल्यू क्या है? आई नीड दिस वैल्यू, मुझे चाहिए. ओके, तो अगर मैं ये मेंशन कर देता हूं P की वैल्यू या निकाल लेता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकाल सकता हूं भाई? लुक एट दिस पॉइंट, बोथ आर गोइंग टू बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, तो क्या होगा, P and x, P intersect यानी at point P, this line of 45 degree y equal to x intersect this line, इसको intersect कर रही है, तो we can simultaneously solve this line to find out the coordinate of
पॉइंट P। ओके, तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, फाइंड पॉइंट P। सही है, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या करेंगे? ओके, तो y इक्वल टू 3x into x, compare with this equation. Okay, right, compare with this equation. So now compare both equations. सही है बच्चों? क्या होगा यहां पे? क्या लिख सकता हूं? x। सो x इक्वल टू 3, मैं यहां लिख रहा हूं x इक्वल टू 3 square root of x. How you will solve this equation? Take square root both side. Yes. Squaring both side. तो हम इसको स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। एम आई राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 9x इंटू एक्स, तो इट इज 9x। क्लियर? ओके, अब नाउ टेक इट, मूव हियर। इसको अगर हम यहां मूव कर लेते हैं, सो व्हाट यू, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। क्लियर? सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो x फैक्टर आउट कर सकता हूं, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? यस, 9। x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू 9। x equal to 0, x equal to 9. Okay, yes. तो what can I put here in P? 9 लिख सकता हूं यहां पे? ओके, यहां मैंने 9 लिख दिया। ओके, 0 क्यों नहीं लिखूंगा? It is not possible because the value of x is not possible 0 here. Yes. सही है, तो 0 कहां पे होगी बच्चों? ओरिजिन पे। यहाँ 0 0 लिख सकता हूं? Yes. क्लियर? अच्छा, ये 9 यहाँ पे भी होगा। ओके, लुक एट हियर, along x एक्सिस यहाँ पे भी 9 होगा। चलो भाई, ये पॉइंट आ गया 9। ओके, अब y चाहिए। क्या करूं बच्चों? y चाहिए, substitute in this equation. Clear? So now put x equal to 9 in, किसमें कर रहा हूं? y equal to 3 equal to 3। और वैसे भी कर सकता हूं भाई, इसमें भी रखूंगा तो y equal to 9x है। yes. तो it means के y must be equal to 9। Why? Because it's lie on this line. yes. I have told you। तो जो x होगा वही y होगा, तो जरूरत भी नहीं है करने की, वैसे भी 9 आ रहा है। yes. और you can do directly। So now it is 9। You got my point? Clear? बिल्कुल? yes. Okay? अच्छा, अब क्या करना है? बस क्विकली अब पॉइंट्स तो आ गए भाई। लोअर लिमिट इज व्हाट मिस्टर? यस, गिव मी आंसर। लोअर लिमिट इज व्हाट? 9। Oh, lower limit is 0. Upper limit is 9. तो I can integrate this equation yes. to find out the area under the curve। कहां तक का आएगा? Just okay, ये पूरा आ जाएगा। yes. Okay, ये पूरा आ जाएगा, बट तुम्हें क्या चाहिए? You need to find out this area। वो बाद में सोचते हैं क्या करेंगे। तो अब पहले तो ये करते हैं इंटीग्रेट। ओके, हमने किया भाई इंटीग्रेट। किसको किया? इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं भाई, एरिया
ऐसे ही लिख दिया भाई। एरिया अंडर द कर्व उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों? देखो एरिया सी, क्लियर बिल्कुल। अब आ जाओ, इंटीग्रेट किया, किसके रिस्पेक्ट करूंगा? 0 एंड 9। ओके, तो 3 दिस वन एंड dx डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों, लिख दूं, क्या होगा? 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर, एंड प्लस, ओके, एंड लिमिट इज 0 एंड 9, प्लस सी लगाऊंगा, Yes. No. फिर यस, नो, वाई? इन लिमिट वी डोंट हैव कांस्टेंट, क्लियर बिल्कुल। तो अब क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? इसको कर लेते हैं भाई। ये 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 ऊपर चला जाएगा, ओके। Yes. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो नाउ आई एम अप्लाइंग द लिमिट हियर, सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 9 3/2 माइनस 2 into 0 की power 3/2 and this one is 3/2. Okay, so your answer is what? So 3/2, 9 की power 3 and then square root, ऐसा ही है, clear? So 9 power cube, it is 729 and take it the square root of 729. 7 square root of 729, it is 27. 27 multiplied by 2, multiply by 2, so now you have 54, it's become 0, okay, Yes. clear? अपने आप खुद भी करते जाओ बच्चों। so area under the curve is 54। अब क्या निकालोगे? बच्चों ये क्या बन रहा है? A right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ओके। अब राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है भाई? तुम्हें क्या चाहिए होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? Area. एरिया। कैसे निकालते हैं? Half base into height. हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस? 9. 9। व्हाट इज द हाइट? 9. 9। करूं? ओके, तो एरिया अंडर दी लाइन, ऐसी लिख दूं, Yes. एरिया ऑफ लाइन अंडर द लाइन, सही है। क्या हो गया? इससे लिख रहा हूं, क्या करूंगा बच्चों? 1/2, क्या फॉर्मूला है? Base into height. बेस इंटू हाइट। तो क्या करूं? 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 9 जा 81. 81 डिवाइडेड बाय 2, so 40.5 I think, Yes. okay, 81 divided by 2, it is 40.5, so you have 40.5, okay। अब क्या करना है? 54 minus 40.5. why? you need to find out the area Shaded. of shaded region। तो क्या लिखूं भाई बच्चों? area of shaded region, तो एरिया ऑफ कर्व माइनस एरिया ऑफ लाइन, सो नाउ व्हाट? सो 54 minus 40.5, yes, what is your answer? Yes, answer is 54 minus 40.5, okay, 13.5, Yes. so answer is 13.5। अब जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर, मीटर, सेंट, व्हाटएवर जो भी हमें उसमें लिख देंगे, क्लियर? Yes. so 13.5, okay। अब now look at another question, clear? okay, now move this one, okay। now the question number, next question is November 2 paper 1 question number 10, it is 4 plus 4 yani it is 8 marks question, okay।
सो इट इज 8 मार्क क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? द लाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2√x। इसकी इक्वेशन तो दी हुई है कर्व की, वो दी हुई है y इक्वल टू 2√x। ये इक्वेशन दी हुई है। ओके, देन व्हाट ही सेइंग, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये इक्वेशन दी हुई है एंड फिर कह रहा है कि नाउ लाइन BC, भाई दिस इज लाइन BC, नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल है एट पॉइंट B। अच्छा, अब whenever we have a line, normal line, इसका मतलब है जिस पॉइंट और कर्व के ऊपर वो नॉर्मल है, तो जहां पे वो कर्व को टच कर रही होगी तो you will have a tangent. Yes. That tangent will be perpendicular to that normal line. ठीक है, तो यहां पे जो टेंजेंट होगी it will be perpendicular to this one. ये ध्यान में रखो whenever we talk about, recall, जब हम ये बात करते हैं लाइन BC is normal to the curve, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल है, तो जहां पे वो कर्व को टच कर रही होगी तो you will have a tangent at that point where that normal line is going to touch a curve, so that tangent line will be always perpendicular to normal BC, यानी उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को जो कर्व दिया हुआ है, हमें पहले क्या करना है, आपसे कह रहा है और द पॉइंट टू द कर्व एट B, अच्छा, एंड C lies on x-axis, C lies on x-axis, AD and B are perpendicular to x-axis, two lines are AD and BE are perpendicular to x-axis, find the equation of normal BC, इसकी इक्वेशन निकालनी है एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ओके, तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे भाई, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट है, इस तरह कह देता हूं भाई, एक टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी जो इसके परपेंडिकुलर है। ओके, मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, ये टेंजेंट है, क्लियर। ये क्या बनाई मैंने, टेंजेंट। ओके, ये टेंजेंट बना दी, राइट। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को, इस कर्व को इंटीग्रेट करूं, ओके, Yes. और ये पॉइंट डिफरेंशिएट करूं तो dy ओवर dx आ जाएगा। Yes. और वो dy ओवर dx मैं ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। Yes. तो जब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा उसका इनवर्स रेसिप्रोकल ले लूंगा, Yes. तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। Yes. जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, नाउ यू हैव अ पॉइंट, क्लियर, आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, तो वो पॉइंट इस परपेंडिकुलर लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। Yes. तो देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट परपेंडिकुलर और नॉर्मल, Yes. क्लियर, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, द सॉल्यूशन इज हियर। क्या किया, रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट किया किसको, कर्व को, टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्लियर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा अगर मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्लियर। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx, यस, क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा भाई, 1/2 इंटू 2, ऐसे ही है, x की पावर -1/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो यू विल हैव 1 ओवर x अपॉन 1/2, क्लियर, ऐसे ही है। Yes. ओके, अब नाउ पुट, क्या कर रहा हूं,
सो dy over dx, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या दी हुई x की वैल्यू 4। ओके, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 क्या होगा बच्चों? इट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट में यहां लिख रहा हूं mt। ओके, टेंजेंट क्या आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा? ओके, Yes. स्लोप ऑफ बीसी मींस स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे ही लिख सकता हूं। Yes. ओके, स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? -1/1/2। तो रिवर्ट कर दूंगा -2, ऐसा ही है, Yes. -2 आ जाएगा। Yes. Okay, now you will have the -2. Okay, now equation of BC, equation of BC ऐसे ही है। क्या करूं बच्चों? y minus y1 m into x minus x1 निकाल ले। y क्या है? यस, y माइनस, जस्ट बोलते जाओ, 4 equal to -2, x minus 4. So now the y is, इसको उधर लेकर जा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2x और -+8 और +4 लिख सकता हूं बच्चों। ये देखो, Yes. -2x और 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, प्लस का 8 एंड इट इज 4। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -2x + 12, ऐसे ही है, यही आ रही है, -2x + 12। ओके, यही आंसर है। Yes. ओके, अब क्या करना है भाई? एक पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या है? यस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत सिंपल है, क्या करूं? उठाकर इंटीग्रेट कर दूं। Yes. ओके, किसको इंटीग्रेट करना है? Equation of curve. कर्व की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? इज 2√x. ओके, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं यहां कर रहा हूं भाई। तो एरिया किस लिमिट पे इंटीग्रेट करना है? 1 and 4. 1 and 4. Good. Okay. So 2x dx. Yes. So now it is 2 into x की power 3/2, ऐसे ही है, Yes. divided by 3/2 and limit is 1 and 4, ऐसे ही है। Yes. तो ये रिवर्ट हो जाएगा, तो ये इट विल बी 4, सही है। Yes. x की पावर 3/2 अपॉन 3, ऐसे ही है, Yes. एंड 1 and 4। क्लियर? बिल्कुल G. सही है। थोड़ा सा स्पेस देकर लिख दूं ताकि क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट, ये हो गया 2x 3/2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय, ये 4 आ गया था ना, 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड लिमिट इज 1 और 4, सही है भाई। Yes. अब आगे चले, इसको यहां सॉल्व कर लें, जल्दी से मुझे आंसर बता दो भाई। तो आंसर ये आ रहा है मेरे पास 4 into x की पावर 4 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 into 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। तो नाउ यू विल हैव, क्या आंसर आ रहा होगा आपके पास? 4 की पावर 3,
तो क्या हो जाएगा 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 4 द 32, 32 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ये क्या हो जाएगा भाई 4 अपॉन 3, क्लियर, इट विल बी 4 अपॉन 3। तो माइनस कर दें एलसीएम लेकर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां लिख सकता हूं, क्या आ जाएगा 32 माइनस 4, क्लियर, बिल्कुल 32 माइनस 4, तो क्या बच रहा है बच्चों 28, 28 डिवाइडेड बाय 3, इट इज योर आंसर। पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, करना है तो ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट, 28 divided by 3 is what, 9.33, so it is equal to 9.33, yeah, okay, is there any confusion? No. Yes, quickly recall what we did. Yes, बाद में कॉपी कर लेना, पहले recall in the first question. Yes, in the first question what we did, First of all, we solved the equations simultaneously to for find question number one 1, okay, what for what, for finding the upper limit to find the intersection point intersection P, point. ठीक है, उस intersection point से हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया एंड y कोऑर्डिनेट मिल गया, क्लियर, बिल्कुल। फिर हमने क्या किया, हमने उसको कर्व को इंटीग्रेट किया, इक्वेशन ऑफ द कर्व को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू द 0 एंड 9, ओके, हमने इंटीग्रेट किया ओवर द लिमिट 0 एंड 9, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आ गया, देन व्हाट, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, बिकॉज यू हैव द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के बाद हमने क्या किया, उसमें से एरिया अंडर द कर्व में से हमने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो यू विल हैव द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्लियर, एंड नाउ यू कैन डू yourself because I have solved this one. Okay, is there any question related to this topic? Okay, thank you so much, that was from my side. Allah Hafiz.